Hello friends, we are discussing about the thermodynamic process. When we study any thermodynamic process, then we follow the following sequence. In any thermodynamic process, first we will discuss about the definition, then we write the essential condition for this process, then we explain this process with examples, and now we do the application of this process such like first law of the thermodynamics, then we drive the equation of state, and then we draw the indicator diagram, and then we drive the slope, and we also drive the some other formula like the specific heat, adiabatic elasticity. Then we drive the expression for the work done, and we discuss the special cases related to thermodynamic process, and then we solve the numericals problem. Now first we start from the adiabatic process. Adiabatic process, adiabatic change, or adiabatic operation. Adiabatic means any system which do not allow the transfer of the heat. Any system which do not allow the transfer of the heat from the surrounding to init, or from the system to surrounding. That system is called adiabatic. That process is called adiabatic system. Whenever we discuss about any thermodynamic system, then we consider an example of a cylindrical piston. Let us consider this is the cylindrical piston which is the filled with the ideal gas. This is suppose cylindrical piston like in this way. Cylindrical piston like a injection. Whenever you confuse what will be what will this type of the piston, then just you consider the injection syringe. So this is the cylindrical piston, and this is filled with an ideal gas. An ideal gas. The amount of the gas is n mole, or sometimes for our convenient we take the number of moles in this gas is 1. So the some amount of the gas is filled with this piston. Now if we change the state of this gas, state means if we change the pressure, volume, and temperature of this gas without changing, or without changing, excluding, or emitting the heat from the surrounding, then this process is known as adiabatic process. Now we come on definition. Heat supplied or taken by system is zero, that is the system is insulated so that no heat enter or leave the system. Or when a thermodynamic system undergoes a change in such a way that no exchange of the heat take place between it and the surrounding, the process is known as thermodynamic process. In this process, P, V and T change, but delta Q is equal to 0. It means there is no change in the heat. ये सिस्टम ना तो अंदर की हीट को बाहर जाने देगा, ना बाहर की हीट को अंदर आने देगा. So what are the essential condition for this? So first is the first essential condition that the wall of the container or wall of the system must be a perfectly insulator. Must be perfectly insulator. ये walls जो हो वो क्या हो, बहुत ही perfectly insulator हो, जो heat को बिल्कुल भी allow नहीं करे. And second, the process must be sudden or fast. Process इतना sudden या fast होना चाहिए कि हीट को एक्सचेंज करने का, सिस्टम को हीट सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिले. सो द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए एडियाबैटिक प्रोसेस, देयर शुड not be any exchange of the heat between the system and the surrounding. All the walls of the container and the piston must be perfectly insulating. And second, the system should be compressed or allowed to expand suddenly so that there is no time for exchange of the heat between the system and the surrounding.
Since these two conditions are not fully realized in the practice, so no process is perfectly adiabatic. Let us see this system. If we compress this gas, we know that when we compress this gas, then the temperature of the gas is increases. Temperature of the gas is increases. Now, if these walls are the perfectly insulated, then the heat is not ejected to the surrounding. So this is adiabatic process. Now, if this process is slowly, यदि ये प्रोसेस स्लोली धीरे धीरे होगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 100% एडियाबैटिक वॉल्स पॉसिबल नहीं है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, सराउंडिंग के साथ अपने हीट एक्सचेंज कर लेगा, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं हो पाएगा. सो इसलिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, सडनली होना चाहिए. नेचर में जो भी सडनली प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. Sudden compression or expansion of the gas in a container with perfectly non-conducting walls is example of the adiabatic. Sudden bursting of the tube of the bicycle tire. आपने कभी किसी बाइसाइकिल, किसी कार, किसी व्हीकल की यदि हवा निकाली हो तो वो हवा करते हुए निकलती है, लेकिन वो बहुत ठंडी महसूस होती है. ठीक है. आप सर्दियों में अपने मुंह को भी आप ऐसे शेप बनाकर यदि प्रेशर के साथ हवा निकालें तो आप ये देखेंगे कि आपके मुंह के अंदर से जो एयर आ रही है वो भी क्या आ रही है, ठंडी आ रही है. दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस. कैसे, देखिए ये ठंडी क्यों लग रही है हमें, क्योंकि हम प्रेशर के साथ हवा बाहर एकदम सडनली बाहर निकल रही है, तो इसको कोई भी हीट एक्सचेंज करने का, सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज करने का कोई भी टाइम नहीं मिल रहा, और ये क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है. क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है. एक्सपेंड होने के लिए इसको खुद को, सिस्टम को, गैस को वर्क करना पड़ रहा है, इस एयर को वर्क करना पड़ रहा है. सो इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी. इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा. इसलिए हमें क्या होती है, ठंडी लगती है. सिमिलरली, propagation of the sound wave in the air and the other gases, expansion of steam in the cylinder of steam engine are the example of the adiabatic process. Now we see the some application of the adiabatic process. First law, float means first law in adiabatic process. We know that first law, delta Q is equal to delta W plus delta U. In adiabatic process, delta Q is equal to 0. This implies delta W plus delta U is equal to 0. If delta W पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव है, तो क्या होगा, डेल्टा U नेगेटिव. डेल्टा U नेगेटिव, it means temperature decrease. That is the adiabatic expansion produce cooling. If delta W negative, then delta U positive, so temperature increase, and adiabatic compression produce the heating. Now see the equation of state for an adiabatic process. There must be a question asked in the examination to find the process or find the equation of state for adiabatic process. Equation of state means relation between the thermodynamic variables for this process. Adiabatic process में delta Q change हो रहा है, सॉरी delta Q constant रह रहा है, but P, V, T ये सब क्या हो रहा है, change हो रहे हैं. Then what will be the relation between P, V and T in the adiabatic process? तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे. इन केस ऑफ एडियाबैटिक चेंज, द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स is reduced to, we know that delta Q is equal to delta U plus delta W is equal to 0, because delta Q is equal to 0. Suppose there is some amount of the energy is supplied. If we supply the some amount of energy, let us consider this is the delta Q amount is supplied to in a thermodynamic process. Then this will be utilized in two factor.
first to increase the temperature of the gas. First to increase of the temperature of gas, that is one part of the this heat supplied is utilized in to change in energy, and second used in to perform the work done on the gas. Let us consider the amount of the energy used to change the internal energy is delta Q1, and second amount delta Q2 is perform the work on the gas. So delta Q is equal to delta Q1 plus delta Q2. Now ये डेल्टा Q1 एनर्जी जब हम इस सिस्टम को देंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो दिस डेल्टा Q इज इक्वल टू एन सी वी डी टी. If number of mole in this gas is 1, for our convenient we take n is equal to 1, then delta Q is equal to CV dt, delta Q1. और सेकंड पार्ट जो है वो इसके वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो डेल्टा Q2 इज इक्वल टू पी डी वी. सो नाउ डेल्टा Q इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी. बट वी नो दैट but in adiabatic process delta Q is equal to 0. So CV dt plus PdV is equal to 0. ओके, क्या किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी सप्लाई करते हैं हम, वो दो पार्ट में यूज होती है. एक तो उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, दूसरा उसके वर्क डन में. तो सपोज कि कोई एक सिस्टम है, उसमें यदि हम डेल्टा Q एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो एक पार्ट से डेल्टा Q1 उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है. इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, इंक्रीज करता है, तो इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा. और एक मोल गैस को टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो होती है एन सी वी डी टी, और n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे. सो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू सी वी डी टी. बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट यानी डेल्टा Q, ये इस गैस पर जो वर्क डन किया जा रहा है उसमें यूटिलाइज होगा. सो डेल्टा Q2 इज इक्वल टू पी डी वी. वर्क डन जो होता है किसी गैस पर वो क्या होता है, पी डी वी. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द Q1 एंड Q2 इन दिस इक्वेशन, एंड वी नो दैट इफ दिस प्रोसेस इज द एडियाबैटिक, तो डेल्टा Q तो टोटल क्या होगा, 0 होगा. डेल्टा Q 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0. नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, from ideal gas equation, ideal gas equation, ideal gas equation PV is equal to nRT, but for our convenient we take n is equal to 1. n भी ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. so PV is equal to RT. now we want to find the relation between CV, DV or V and P. So first we differentiate this equation with respect to temperature. Differentiate with respect to temperature. Then P dV अपॉन, पहले P को क्या करेंगे हम कांस्टेंट रख लेंगे, फिर V का डिफरेंशिएशन करेंगे dV अपॉन dt, प्लस फिर क्या करेंगे V को कांस्टेंट रख देंगे और dP अपॉन dt, इसका P का T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे. RT का डिफरेंशिएशन करना, R कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे तो dt अपॉन dt. सो क्या बचेगा, ये P dV अपॉन dt प्लस V dP अपॉन dt इज इक्वल टू R. ये dt अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज P dV प्लस V dP इज इक्वल टू
आर डी टी। ये जो टी डी टी है इधर से हम इस साइड लेकर चले गए, यहाँ से डी टी को फाइंड करके हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। See on next page। तो ये हमारा dt आ गया और हमारी थर्ड इक्वेशन जो थी वो थी सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। इसको हम फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ सी वी डी टी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, इस ब्रैकेट को सोल्व करें और r से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी। सी वी को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया और r से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड 0 हो जाएगा और इस साइड r से r कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा इधर पी आर डी वी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी पी डी वी आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पी डी वी आ रहा है। तो क्या किया जाए, यहाँ से पी वी डी वी को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ से केवल सी वी बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, आर बचेगा। तो सी वी प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय पी डी वी। अब ये टर्म बची प्लस सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, डिवाइड बाय दिस, ये सी वी प्लस आर, ये आपने मेयर रिलेशन पढ़ा हो। मेयर रिलेशन क्या कहता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, है ना। तो फ्रॉम मेयर रिलेशन सी वी प्लस आर इज इक्वल टू सी पी। So this implies CP PDV plus CV VDP is equal to 0. Now divide this equation, divide by CV PV। तो क्या आएगा, CP PDV अपॉन CV PV प्लस CV VDP अपॉन CV PV। P से P कैंसिल इस साइड और इधर क्या आ जाएगा, V से V कैंसिल इक्वल टू 0। यहाँ से दिस इंप्लाइज क्या बचेगा, CP अपॉन CV एंड DV अपॉन V प्लस CV से CV कैंसिल DP अपॉन P, DP अपॉन P इज इक्वल टू 0। लेट्स सी हियर, एक दूसरी टर्म आती है, रेशो ऑफ द CP एंड CV इज इक्वल टू गामा। केटीजी में हमने डिस्कस किया था। सो वी गेट गामा dV अपॉन V प्लस dP अपॉन P इज इक्वल टू 0। क्या लिखा था, एक बार दोबारा लिखते हैं यहाँ पर। गामा dV अपॉन V प्लस
dp upon p is equal to 0. Now integrate this equation both side. इंटीग्रेट, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. इंटीग्रेट बोथ साइड. देखिए इंटीग्रेशन क्या आ रहा है यहाँ पर, लाइक दिस dx अपॉन x. तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x. ln x या फिर ln को हम क्या बोलते हैं, log e की बेस x. क्या बोलते हैं, log e की बेस x. And we know that integration is the reverse of the differentiation. तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है. तो इसका मतलब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा. सो लेट्स सी हियर. इंटीग्रेशन dv अपॉन v प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इज इक्वल टू 0. इस साइड भी कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगा. 0 मल्टीप्लाइड बाय जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो दिस टर्म विल बिकम गामा ln v या log e की बेस v प्लस ln p इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा, लेट्स से दिस कांस्टेंट k. यहाँ जो कांस्टेंट आएगा इसको इंटीग्रेट करने पर उसको हमने k लिख दिया. अब देखिए एक नया फॉर्मूला आता है, आपने पढ़ा होगा, a log e की बेस x होता है. तो a इसकी पावर में होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर a. इस फॉर्मूले को हम यूज करके यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ln v की पावर गामा प्लस ln p इज इक्वल टू k. नाउ दिस इज log a प्लस log b. तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ln log a प्लस b log b क्या होता है, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab. तो v की पावर गामा p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k. यहाँ से जब log को हटाएंगे तो इधर ये जो आएगा वो क्या आएगा, e की पावर में k कुछ आएगा तो इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ क्या होगी, कांस्टेंट होगी. सो वी कैन राइट दैट p v की पावर गामा इज इक्वल टू कुछ और नया कांस्टेंट. दिस इज द रिलेशन फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंड दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट. दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट. अब ये जो इक्वेशन है वो किस किस के टर्म्स में है, P और V की टर्म्स में है. हमने कहा कि टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, तो टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे लाएंगे, क्या क्या, मतलब हमारे पास 3 वेरिएबल है, कौन कौन से, P V T. अब देखिए एक बार PV आ गया तो PT भी आना चाहिए, VT भी आना चाहिए. इतना कॉम्बिनेशन बनता है, और भी कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, और एक डेंसिटी भी आना चाहिए. तो देखते हैं डिफरेंट इक्वेशन, इसको हम लिख लेते हैं. डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. मेन जो इक्वेशन है वो यही है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट.
पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसको हम और कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं नई नई इक्वेशन क्या आती है। We know that PV is equal to RT for 1 mole of gas। n मोल होगा तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, n रख देंगे। तो यहाँ से PV is equal to RT, यदि हम P को एलिमिनेट करना चाहें तो क्या आ जाएगा, P is equal to RT अपॉन V। अब इस इक्वेशन को इसमें रखें P की वैल्यू को, तो RT अपॉन V की पावर गामा इज इक्वल टू K। तो यहाँ पर R क्या आ जाएगा, T V की पावर, यहाँ पर V की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K अपॉन R। R भी कांस्टेंट है तो ये कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो सेकंड जो इक्वेशन बन गई वो हमारी क्या बन गई, V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये T और V के बीच में इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब P को भी लेकर आए, तो P को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए V को एलिमिनेट करते हैं तो यही वापस आइडियल गैस इक्वेशन से इस बार V इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। तो V की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये P तो है ही, और V की जगह क्या रख दें, आर टी अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये P की पावर R की पावर गामा, T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये क्या आ गया, P की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस गामा, और T की पावर गामा इज इक्वल टू K अपॉन R की पावर गामा। गामा एक कांस्टेंट फैक्टर होता है, तो रेस ऑफ द स्पेसिफिक हीट, तो ये जो फिर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये नई हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट बन गई, T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमने 3 इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने ड्राइव कर चुके हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पी टी आ गया, वी टी आ गया और पी वी आ गया। अब यदि हमें डेंसिटी की टर्म्स में ट्राई करना हो, क्या हो, यदि हमें डेंसिटी की टर्म्स में इक्वेशन फाइंड करनी हो तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इन केस ऑफ डेंसिटी वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो पहली हमारी इक्वेशन जो है वो क्या, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए पी वी की पावर गामा, वी इज इक्वल टू क्या है, एम अपॉन डी, एम अपॉन डी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया, पी एम की पावर गामा अपॉन डी की पावर गामा इज इक्वल टू के। तो ये क्या आएगा, पी, ये 1 अपॉन डी की पावर गामा है तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डी की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू के अपॉन एम की पावर गामा। मास हमने यहाँ पर कांस्टेंट माना है, तो यहाँ पर क्या बन गया नेक्स्ट इक्वेशन, पी डी की पावर गामा इज इक्वल टू के। दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, स्टेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब ये प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन है। अब प्रेशर को भी एलिमिनेट करें, प्रेशर को कैसे एलिमिनेट करें देखते हैं। PV is equal to RT and P is equal to RT upon 1 upon V। RT 1 upon V, V is equal to M upon D है, तो 1 upon V is equal to क्या आ जाएगा, D upon M। अब इस इक्वेशन को, इस हमारी मेन जो इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी उसमें पुट करते हैं, या इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो P की जगह RT D अपॉन M
और डी की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू के, ये इसमें पुट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, डी की पावर 1, डी की पावर माइनस गामा और टी के एम अपॉन आर, ये वापस कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा और ये नई इक्वेशन बन गई, डी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, डी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये नई इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी। इसके बाद में हम कुछ और दूसरे स्पेशल पॉइंट नेक्स्ट क्लास में, दूसरे स्पेशल पॉइंट और वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे। थैंक यू।